A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the poem I Remember by Thomas Hood for class 9 and 10 ICSE. Okay, so the main theme of this poem is that childhood nostalgia. As you can see here, that the poet remembers himself as when he was a child and the beauty of childhood, which the person cannot find it now in the current situation. Okay, so Thomas Hood's I Remember is a poem that is filled with the nostalgia for happier days of life. Means जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा वी आर लॉन्गिंग फॉर द हैप्पी डेज कि हाँ बचपन में हम ये करते थे वो करते थे, तो यही सारी चीजें यहाँ पर एज अ पोएम इट हैज बीन शोड. The poem's speaker, he is going through unspecified troubles and struggles as an adult. Everyone goes through a lot of struggles in life. Okay, तो वैसे ही पोएम का जो स्पीकर है द सेम पर्सन इज ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम थिंग्स. तो ही जस्ट लुक्स बैक, वो पुराने जमाने में देखता है एंड ही फील्स द डेज ऑन हिज यूथ की जब वो बहुत छोटा था, एंड ही फील्स एज इफ ही मस्ट हैव वंस अगेन लिव्ड इन एन इटर्नल समर, कि फिर से वो समर वाले डेज काश वापस आ जाए जब वो छोटा सा बच्चा था. Back when he was a boy, when he was a small person, a small baby. Okay, he says the flowers were seem to be in bloom. कि उस time पर वो flowers की जो beauty थी, that were in full bloom और वो बहुत सुंदर लगते थे. The light-hearted soul flew in feathers, और उसके जो उसका जो खुद का मन था, it used to fly in the sky like a swallow, a bird. And the heaven seemed nearby as the top of the trees. And जब भी हम लोग ट्रीज को देखते थे तो हमें ऐसा लगता था कि जो बर्ड्स सॉरी जो स्काई भी है वो बहुत ज्यादा ट्रीज को ऐसे करके टच कर रहा है. ओके, अलास, बट नाउ सैडली चाइल्डहुड कैनॉट लास्ट फॉर एवर एंड adulthood means leaving those charmed days behind. And just because कि we cannot have those childhood days forever, तो इसीलिए जब we move towards adulthood हम लोग को ये समझ में आता है कि हम लोग अपना बचपन बहुत पीछे छोड़ आए और वो दोबारा नहीं आने वाला है. ठीक है, to us it won't come back. And this is why this poem tells about the nostalgia of childhood. Then here Hood wrote this poem in 1826 and it was published in the annual magazine Friendship's Offering. ठीक है, तो now we'll move towards a line by line explanation of the poem. The poem says, I remember when the house where I was born, उस house में जहाँ पर I had taken birth, the little window where the sun came peeping in at morn, और वहां पे एक छोटी सी विंडो थी जहां से सूरज निकल करके आता था, and it used to peep in the morning, झांकता था वहां से रोशनी आती थी बहुत सुंदर सी. ही नेवर केम अ विंग टू सून, मतलब कि नेवर एवर ही वॉज लेट. कौन यहाँ पर सन की बात हो रही है. दैट सन वॉज ऑलवेज ऑन टाइम. ठीक है, ही नेवर केम अ विंग टू सून, ना ही वो बहुत जल्दी आ जाता था, ना ही इट यूज टू ब्रिंग द डे टू लेट, वो समय पर आता था. बट नाउ अब आई ऑफन विद द नाइट हैड borne my breath away, means I have to with all my night, if night goes on and I have to take my life away every time I need to feel like I have to just live for the life we are living. The day never seemed too long, but these days I often wish I had died during the night because I don't feel like I live so heavily here कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हाँ अब वो डेज जो है वो वापस आ पाएंगे. I still remember the roses red and white, the violets, the lily cups. ये जो flowers है इनकी यहाँ पर बात हुई है. ओके, तो सबसे पहले the roses red and white, the violets, then the lily cups, these are the lily cups. ठीक है, फिर those flowers made of light, और वो इतने ज्यादा डेलिकेट होते थे, ऐसे लगता था कि वो किसी लाइट से बने जो अपने आप ही मतलब बहुत ज्यादा जल्दी वो खराब हो जाएंगे क्योंकि वो बहुत डेलिकेटली बने हुए हैं. And the lilacs were the where the robin built. Okay, so next there were these
फ्लावर्स जिस पर इनके जो ट्रीज होते थे जिस पर द बर्ड robin bird used to make its nest, as you can see the babies here. Then, and where my brother set the laburnum on his birthday, and वहीं पर ही मतलब ये वहां वो चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया की वो सारी बातें बता रहे हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज की बातें, कि वहां पर आई यूज टू रिमेम्बर देयर वर वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स दैट वर रोजेस, जो रेड एंड व्हाइट थे, वॉयलेट से, लिली कप से, दोस फ्लावर्स वो इतने डेलिकेट थे, वो ऐसे लगता था कि लाइट से बने हुए हैं. देयर वर लिलैक फ्लावर्स, जहां पर जो बर्ड थी इट यूज टू बिल्ड इट्स नेस्ट. Okay, and then he also remembers कि my brother, his brother has said, और उसने अपने बर्थडे पर एक लेबर्नम ट्री को मतलब वहां पर जैसे पेड़ लगाते, पौधा लगाते, तो वो लगाया था. एंड दैट ट्री इज स्टिल लिविंग येट, और वो ट्री आज भी उसी जगह पर है. ओके, तो दिस ट्री हैज बीन टॉक्ड अबाउट कि यहाँ पर यही वाला ट्री था, द लेबर्नम ट्री, स्मॉल ट्री. छोट उस टाइम पर हमने उसको लगाया था और अभी भी वो ट्री वहीं पर ही है. It is still growing there. Then I still remember where I used to swing, जहां पर I used to swing, ठीक है, झूला हम झूलते थे. And I thought the air must rush as fresh to swallows on the wing, और मुझे ऐसा लगता था कि when I was swinging, तो जैसे बर्ड्स को बहुत ही हवा बहुत ही तेजी से लगती थी, मुझे ऐसा लगता था आई एम ऑल्सो स्विंगिंग इन द सेम एयर फ्रेशली, जैसे कि बर्ड्स को लगती है. बर्ड्स यहाँ पर कौन सी, स्वैलोज की यहाँ पर बात हुई है, इस बर्ड्स की. देन माई स्पिरिट फ्लू इन फेदर्स देन, एंड आई वॉज सो हैप्पी. आई यूज टू फील लाइक चाइल्डहुड मेमोरी में मैं इतना ज्यादा टेंशन फ्री रहता था कि मुझे कभी मतलब आई यूज टू my spirit flew in feathers then, ki I used to feel like I am flying in the sky. I don't have any sort of tensions or miseries of life. That is so heavy now. And उस time पर जो I used to feel so light, so happy, अब मुझे वो चीज फील नहीं होती है. Now everything feels so heavy now. और जो summer pools हैं, they could hardly cool the fever on my brow. And just because कि पहले अर्लियर अगर मैं कभी पूल में जाता था, पॉन्ड लेक्स में जाता था स्विमिंग करने के लिए, तो उस टाइम पर आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी. बट नाउ अब ये जो समर पूल्स हैं, समर में व्हेन यू गो टू इनसाइड द स्विमिंग पूल, तो वो जो फीवर ऑन माय ब्रो है, जो मेरी टेंशन है, मिजरीज है, उसको वो नहीं हटा सकता. ठीक है, अगर आप भी अपने बचपन के फोटोज, एल्बम्स या वीडियोस फोन में देखते होगे, तो यू वुड आल्सो फील लाइक ओ आई वाज सो हैप्पी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड compared to how much tension you do have right now. Abhi you will go all grown up, you will be, so उस time पर you will have other tensions of life as well. तो यही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि अभी भी समर पूल्स में जब मैं जाता हूँ, तो अब मुझे वो हैप्पीनेस कम फील होती है, क्योंकि मुझे बहुत हेडेक होता है, बहुत सारी मिजरीज और प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में. देन आई स्टिल रिमेम्बर द फर ट्रीज, दैट दीज आर द निडल लाइक ट्रीज जिनकी यहाँ पर बात की गई है, ये ठीक है, जिनके स्लेंडर टॉप्स है. आप यूजुअल ट्रीज देखोगे वो ऊपर से बहुत घने होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके जो टॉप है बहुत स्लेंडर है, मतलब बहुत थिन टॉप्स है. तो दे वर डार्क एंड हाई, दे वर वेरी डार्क, दे वर डार्क लीव्स में बहुत घने से होते थे, बट ऐसे करके होते थे. दे वर हाई, बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे. एंड मुझे ऐसा लगता था कि उनके ये जो स्लेंडर टॉप्स हैं, तो दे आर डेलिकेट, ऊपर से दे आर मेड लाइक दिस, इस शेप में होते थे. ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये बहुत ही ज्यादा पतला होता था उनका. were close against the sky and it was so close. मुझे ऐसा लगता था कि ट्रीज के ठीक ऊपर जो है वो आसमान है, और वो मेरी चाइल्डिश इग्नोरेंस थी, वो मेरी बचपन की अज्ञानता थी, जिसमें मुझे नहीं पता होता था कि जो स्काई है वो इतना ऊंचे है. बट नाउ टिस लिटिल जॉय टू नो आई एम फादर ऑफ फ्रॉम हेवन देन व्हेन आई वाज अ बेबी. तो कह रहे कि अब मुझे ऐसा लगता है, दिस इज फादर, दिस इज नॉट फादर, दिस इज फादर, कि अब मुझे ऐसा लगता है कि नाउ इट फील्स लिटिल जॉय. अब मुझे नाउ आई एम मोर, सॉरी, आई एम वाइसर
अब मुझे ज्यादा पता है चीजों के बारे में, ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है मुझे। जो चीजें मुझे पहले नहीं पता थी वो सारी अब पता है। द हाउ दिस ज्योग्राफी हिस्ट्री वर्क सब मुझे पता है। बट अब मुझे वो चीज में जॉय या खुशी नहीं मिलती है जो मुझे वो बचपन की अज्ञानता में मिलती थी, जिसे मुझे लगता था कि ट्रीज के ठीक ऊपर स्काई है। नाउ आई डोंट फील लाइक द सेम थिंग्स, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि हेवन जो है वो बहुत दूर है दैन जो अब उस समय लगता था जब मैं छोटा सा बच्चा था। ओके, तो ही इज सेइंग दैट ही यूज्ड टू फील जॉयज इन दोज लिटिल थिंग्स ऑफ लाइफ जो अब उसे नहीं मिलती हैं, एंड ही जस्ट विशेस टू गो बैक अगेन। तो नाउ दिस इज द मेन थीम्स, जहां पर नॉस्टैल्जिया के बारे में, द फ्लीटिंग नेचर ऑफ टाइम कि समय कितनी जल्दी बीतता जा रहा है, एंड द कंट्रास्ट बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। बचपन में जो चीजें उसे अच्छी लगती थी अब वो चीजों को वो मिस करता है, चाहे वो समर पूल्स हो, चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे वो ये जो स्काई वाला सीन था, स्लेंडर टॉप्स ऑफ द फर ट्रीज। ठीक है, तो ये चीजें तब होती थी, अब ये चीजें नहीं है बिल्कुल भी। तो दिस इज ऑल दिस poem all about. I hope you all have understood this. Rest we'll be doing soon. If there's something you wish to understand on your own, you can mention it in the comment box. Keep preparing. Best wishes. Thank you.